we all educationists put lots of efforts on students, but in spite of all these resources, all this knowledge, all this technology, good professors, everything, still they are not able to achieve success. Somewhere there is a lag or there is some gaps. What is your take or your thoughts on that? I think that is one question which is always bothering me, believe me, because no, as you rightly said that today we have resources. Earlier we didn't have resources. We always thought that resources are in America. Yeah. That was the feeling, Yeah. and people were running towards America. People were running Correct. towards Australia and all that. Correct. So I think the scenario is what is holding you back when you have resources, when you have education. What is holding you back? So I think people are unable to identify what is holding them back. So probably whenever I interact with somebody, I see that once upon a time, fear of failure was one of the important parameters which was holding people. Correct. Like public speaking was one of the major threats, Challenge, yeah. and people never used to be on stage. Slowly things are changing. But is the public speaking the only fear? No. So what is that? Those other fears. So probably some people have the fear of language. So language fear. Third could be people have become so conscious that they don't like to be judged by others. Right. So if you are constantly thinking that how people are going to judge me, that itself is a big fear which is holding you. Because then you are not doing something which is so very important, but because of this threat, you are holding yourself. Correct. The fourth important parameter is some people are just perfectionist. They feel that unless and I become a perfect person, I will not start only. Yes. Or that they will never come, that you will become a perfectionist. But that continues to hold you. Fourth is, or fifth parameter is, some people get into over preparation of everything Yes. because they have a big fear of failure. So they will prepare, Yes. and they will never know when are they going to be really prepared for the match or for the game. So if you are into all this, and lastly, that what happens to my image which I have already built. So probably you have built a good boy image, or you have built an image of smart boy in front of girls. I don't want or, to fail. or if that image is which you have created shatters. So to protect that false image which you have created, you continue to not do something, or you lie something, you no probably you goof off, Or you keep on doing what you're doing continuously. exactly. So you're just running away from that, and you are saying that let me be doing something so that all those things which I have already created, false image, even if it is a small false image, I'm okay with that, but I don't want to fall flat in front of everybody. So how do you, as a dean, motivate your students, your faculties to come out of this fear and start speaking? Because see, if I tell somebody, अरे डर मत जाके स्टेज पे बात कर ले, तो होना नहीं है. तो क्या है सर, जब तक कि हम ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करते हैं कि फेल होना कोई स्टिग्मा नहीं है, क्योंकि ये वर्ड फेल में ही अपने आप में एक स्टिग्मा नजर आ रहा है लोगों को. राइट. तो ये वर्ड को हम कम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? क्या हम उसको एक्सपीरियंस बोल सकते हैं क्या? क्योंकि फेलियर ही एक्सपीरियंस दे रहा है. करेक्ट. अदरवाइज तो जर्नी में कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है आपको. नया एक्सपीरियंस जब भी आप करने जाते हैं, जो याद रहता है वो वही रहता है जहां पर आप अटक गए थे. अब हम अटकने को फेल बोल रहे हैं एक्चुअली जिंदगी में. अब हम जहां रुक गए थे, दौड़ते दौड़ते, यदि मैं मैराथन दौड़ रहा हूं और दौड़ते दौड़ते मैं रुक गया कहीं, शू लेस भी बांधने लगा, तो लोगों को लग रहा है कि ये थक गया इसलिए शू लेस बांधने की एक्टिंग कर रहा है. राइट. लोग ऐसी बातें कर रहे हैं. या वो नहीं भी करे तो हम ऐसे बिलीव करने लगते हैं कि शायद लोग मेरे बारे में ऐसे सोचेंगे. तो चैलेंज क्या है सर? ये सेल्फ बिलीफ का चैलेंज है. पूरा बॉइल डाउन होता है कि आप अपने आप के ऊपर आपने कैसे सेल्फ बिलीफ की एक रोप बांध के रखी हुई है. राइट. और ये रोप आपने नहीं बांधी है. एक्चुअली ये रोप उस दिन बांधी जाती है जब आप पैदा होते हैं. तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कुछ रोप बांध देते हैं, कुछ फिर टीचर्स भी रोप बांध देते हैं कि भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ मत पूछा करो क्लास में, अब ज्यादा क्वेश्चन ही मत पूछो, नहीं तो आप शैतान बच्चे के नाम से जाने जाते हैं. राइट. और मेरा एक बहुत थॉट प्रोसेस है कि टीचिंग जो होता है बेस्ट होता है जब हम टीम में रहते हैं. राइट. क्योंकि हम एक्सचेंज कर सकते हैं. लेकिन हमारा स्कूल का सिस्टम ही ऐसा है जो हमें अलग अलग बैठने के लिए मजबूर करता है, जो कि टीम की तरह रहने नहीं देता है. जब भी हम यदि
एकेडमिक भी बात करते हैं तो टीचर बोलती है कि बात मत करो क्लास में। भले ही मैं फिजिक्स की बात कर रहा रहता है तो टीचर बोलती थी कि अरे यू आर अ वेरी टॉकेटिव स्टूडेंट, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू मी। सो टीचर्स, मेनी टीचर्स आर वांटिंग दैट वी शुड बी फोकसिंग ऑन देयर attention rather than we discussing something which So is it is new knowledge. becoming one is to one channel rather than a group So discussion. वो ग्रुप डिस्कशन होता नहीं है, टीचिंग होती नहीं है, लर्निंग नहीं होती है, हम वहां पर फेल ही नहीं होते हैं, क्लास में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हम फेल हों Correct. या कुछ नया सीखें। तो हम पूरे सिस्टम में से इसी तरह बढ़ते आते हैं And suddenly बोलते हैं challenges ले और लो। फिर हम नया कुछ सडनली एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ हाँ। अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया इज कि हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि यदि हम कॉपी करते हैं किसी को, बड़े इंसान को भी कॉपी करते हैं, नथिंग रॉन्ग। कभी ना कभी सुनील गावस्कर ने किसी को कॉपी किया, कहीं ना कहीं तेंदुलकर ने भी किसी को कॉपी किया, राइट। लेकिन सीखेंगे हम वहीं से जब हम किसी को देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर इमीडिएटली क्लासरूम में एटलीस्ट था, उसको हम चीटिंग का स्टिग्मा देने शुरू कर देते हैं, यार ही इज ए चीटर, मींस ही इज कॉपिंग, मींस ही इज चीटिंग। यस। बट मुझे लगता है कि वो एक बेसिक ह्यूमन इननेट क्वालिटी है, राइट, कि हम कॉपी करके ही सीखते हैं पहली, सी एंड लर्न। लेकिन हम इस चीजों को इतना ब्लॉक करते हैं अपने पूरे प्रोसेस में कि इंसान को वो सब बिलीव डाल देते हैं कि कॉपिंग इज चीटिंग, देयरफॉर ही इज वेटिंग फॉर सम ग्रेट आइडिया टू कम फ्रॉम द स्काई। उसको लगता है कि जैसे न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा था, मेरे भी सिर पर कुछ गिरेगा तब मैं आएगा। राइट, ऐसा होता नहीं है। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। जैसे एक बुक में लिखा गया कि दीज आर हिडन फेंसेस, जो बचपन में हमारे इर्द गिर्द लगा दी जाती है कि ये हमारा दायरा है, इसके बाहर जा नहीं सकते। तो दैट हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट व्हिच ऑल द पीपल हु आर इनटू ट्रेनिंग्स या मेंटरिंग, दे शुड अंडरस्टैंड दिस। ट्रू, वेरी मच, वेरी मच। Very good point, sir. So, sir, you are known as a marketing expert, a sales expert. एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, यूजुअली मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी कंपनीज में जब ये डिस्कशन होते रहते हैं, भाई मार्केटिंग एंड सेल्स के तो झगड़े ही चलने वाले हैं। आपका इस बारे में क्या थॉट्स है? बिकॉज मार्केटिंग वाले बोलते हैं मैं 800 लीड ले आया हूँ, सेल्स वाले ने कन्वर्जन नहीं किया, आपका कन्वर्जन रेशियो लो है, सेल्स वाले बोलते हैं आपकी लीड्स सही नहीं है। So how to tackle this according to you? मुझे लगता है पहले हम ये समझ लें कि मार्केटिंग का रोल क्या है, सेल्स का रोल क्या है, तो मुझे लगता है इससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी। मैं हमेशा जब भी मार्केटिंग की बात समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है मार्केटिंग एक बहुत बड़ा हमारा अम्ब्रेला है। राइट, अम्ब्रेला है, मार्केटिंग इज एन अम्ब्रेला। अब इस मार्केटिंग अम्ब्रेला के बहुत सारे स्पोक्स होते हैं, जैसे अम्ब्रेला में स्पोक्स होते हैं, बिल्कुल वैसे स्पोक्स हो सकते हैं। तो यदि मैं मार्केटिंग को अम्ब्रेला बोल रहा हूँ तो एक स्पोक सेल्स है, मार्केटिंग का एक स्पोक सेल्स है, यहाँ हैंडल सेल्स है। अब कुछ भी एक पार्ट है ना, आप उसको पार्ट बोलो, आप हैंडल बोलो, एक स्पोक बोलो, क्योंकि मैं बोलता हूँ एडवर्टाइजिंग दूसरा स्पोक है, ओके, प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट तीसरा स्पोक है, प्राइस चौथा स्पोक है, ऑलराइट, प्रमोशन पांचवा स्पोक है, ओके, प्लेस ऑफ मार्केटिंग यस नेक्स्ट स्पोक है। सो देयर कैन बी सो मेनी पैकेजिंग, so many spokes are there which influence customers. Right. So if sales is not happening, you cannot blame that. If the product is bad, how sale will happen? True. So marketing encompasses everything, including the strategy of marketing. That whether Apple is being marketed as an innovative product, as a niche product, as a status product, as a symbolic product, as what? If it is not, then salespeople will find it extremely difficult, because sales is only one part of marketing. One part of it, right? It's a very small part of marketing, right? Because when you are not selling, when you are unable to sell, because people have already decided not to buy, correct, then it is very difficult to और sell. अगर प्रोडक्ट अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है तो ऑलरेडी तो भी थोड़ा सा रीजन टू बाई रहता है। सेल्स कैन ओनली पुश द सबकॉन्शियस माइंड टू बाई द प्रोडक्ट, राइट? So how a person can deal with this situation? या एक और मैं आपको थोड़ा सा सेल्स का बता देता हूँ, बिकॉज सेल्स लार्जली इज द रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम ऑफ मार्केटिंग। ट्रू, सेल्स इज ए रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम, मींस सेल्स एक सोल्जर है जो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा। बिल्कुल, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सोल्जर है वो। बिल्कुल। कुछ सोल्जर होते हैं जो इसके लिए खाना पकाते रहते हैं, क्योंकि आपको सस्टेन करना है, फायर करना है, तो आपका किचन भी है, राइट? यानी मिलिट्री में जैसे हम देखते हैं, तो मिलिट्री का किचन भी है, मिलिट्री में सप्लाई चेन भी है कि वेपन्स आ रहे हैं, सोल्जर को चलाने के लिए सप्लाई आ रहा है, सप्लाई चेन भी है, एडवर्टाइजिंग भी है, मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट भी है जो बंदूक चला रही है टीवी पर, राइट? सप्लाई चेन है, क्रिएटिव है, करेक्ट, सब है।
तो मुझे लगता है कि ये जो एलिमेंट ऑफ सेल्स है ये रेवेन्यू फोकस्ड है। जो मार्केटिंग एज सच फोकस है, मार्केटिंग आउटकम जो है वो कस्टमर रिटेंशन है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। राइट। तो टोटल यदि मार्केटिंग का देखें तो मार्केटिंग इज कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ रिटेनिंग एंड मेकिंग कस्टमर्स हैप्पी। ऑल राइट। Sales is that function that happy customers will bring more revenues because happy customers don't ask for discounts. Happy True. customers get associated with you. करेक्ट। So sales का function है to ensure that connectivity is established. राइट। But marketing will ensure everything that customers are happy, they are satisfied, and probably they become loyal customers. They get into the delighted customers zone. All that. So that is the approach. I would always say that it's a large concept. So what I'm understanding is marketing is it's still a bigger activity Much bigger, much bigger. comparing to sales. Sales Yes, वालों को yes. तो सिर्फ वो एक कन्वर्जन बेचना है, मतलब एक हाँ मतलब क्लोज करना है। क्लोज करना है। मीन्स सेल्स का काम है कस्टमर के जेब से पैसा निकाल के अपने यानी कंपनी के जेब में पैसा लाना। लेना। राइट राइट। यानी So the बाकी सब major- लेकिन बहुत पीछे मार्केटिंग यदि अच्छी होगी करेक्ट। तो ये काम में आसानी होगी, रिलायबिलिटी फैक्टर बढ़ेगा। बट देन देयर आर एस्पेक्ट्स के प्रोडक्ट आपका अच्छा अच्छा हो, हो। उसका टाइमिंग करेक्ट हो, जी, सो दैट ऑल थिंग इज आल्सो बहुत important है इम्पोर्टेंट। यस यस यस। बट बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यदि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होगा तो अपने आप बिक जाएगा, लेकिन मुझे वो- लगता है कि यदि जंगल में मोर नाच रहा है तो देख कौन रहा है? बहुत अच्छा मोर बहुत अच्छा डांस कर रहा है लेकिन कोई देख ही नहीं रहा है तो बिकेगा कैसे? तो सेल्स पर्सन की भी जरूरत बहुत है। करेक्ट। मैं बोलता हूँ हापुस के आम रत्नागिरी में बहुत सस्ते हैं। हाँ हापुस का आम लंदन में लेने आओ तो 200 रुपए का एक हो जाता है, हाँ। क्योंकि वो प्लेस की काम हो गया, ये प्लेस का काम हो गया, किसी Correct. सेल्समैन का काम हो गया वहाँ प्लेस, राइट Correct, प्लेस में correct. आइडेंटिफाई। तो ये सब चीजें मैटर करती है। बिजनेस में मैटर करेंगी यार। राइट।